So good morning friends, I welcome you all in the second session of this biology class. In the first class, we have seen and have had a discussion over the different features of living beings and the defining feature of life as well. Now, after having gone through the defining properties or defining features of life, now we shall consider the unit of life. You must have studied in so far classes that every living organism is made up of the basic or fundamental unit of life, which is known as cell. You also have studied that according to the cell theory, a new cell is formed from the pre-existing cell by a process called as cell division. Friends, पिछले वीडियो में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के या लाइफ के डिफरेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था, साथ ही साथ मेन फीचर या मेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ क्या है ये भी देखा था। आपको ख्याल होगा कि डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ इज द कॉन्शियसनेस। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिम्युलस सराउंडिंग इट, and these stimulus may be either the physical, chemical or of different types. Biological भी हो सकते हैं वो। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कॉमन फीचर देखने को मिलता है वो क्या है कि these organisms are made up of the fundamental unit of life, which is representing the structural and functional unit of life, and that fundamental unit is given the name as cell. Cell theory क्या बोलती है कि किसी सेल का फॉर्मेशन एक प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से ही होता है, and the process by which a pre-existing cell, which can be given the name as a parent cell, process by which a parent cell give rise to the daughter cell is actually given the name as cell division. In fact, the cell division is a very small process as far as consumption of time, consumption of duration is concerned. But before the actual process of cell division, a parent cell has to make number of preparations so that it can divide its genome or genetic material equally among the two daughter cells. It is not only the genome which is required to be equally distributed, but also the different cellular components. And therefore, before the actual beginning of cell division, parent cell has to undergo a prolonged phase of preparation. And that preparatory phase is actually given the name as interphase, जिसमें पेरेंट सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है
ये देखो, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम। अभी जीनोम के लिए मैं एक सिंपल वर्ड लिख देता हूं, जेनेटिक मटेरियल। बाद में हम इसका एक्चुअल मतलब देखेंगे जीनोम का। तो पहला इवेंट कौन सा हो गया? डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम और जेनेटिक मटेरियल। केवल जेनेटिक मटेरियल, जीनोम या डीएनए या क्रोमोसोम्स को डबल करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक जेनेटिक मटेरियल जिसकी सहायता से डिफरेंट एक्टिविटीज करता है, वो सब होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स, एंड दीज सेल्यूलर कंपोनेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी डबल्ड बिकॉज they are to be distributed equally among the two daughter cells at the time of cell division. सेल डिवीजन के समय केवल जेनेटिक मटेरियल को ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स को भी दोनों डॉटर सेल्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसीलिए उन सेल्यूलर मटेरियल्स की डबलिंग भी जरूरी होती है। इसीलिए क्या बोलेंगे हम? सिंथेसिस ऑफ ऑल द सेल्यूलर कंपोनेंट्स। जब इतना सब अवेलेबल हो जाता है पेरेंट के पास, तब वो पेरेंट एक्चुअली में डिवाइड होता है, सेल डिवीजन करता है और नए डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यानी अगला इवेंट कौन सा हो गया? डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू टू daughter cells. So all these events are taking place in the life of cell, and these events together constitute the cell cycle. So now we can say a cell cycle is a sequence of events involving the duplication of genome or genetic material, the synthesis of different cellular components, after that the division of parent cell to form the two daughter cells. These events are taking place in a very orderly manner, in a very sequential manner, and all these events together constitute the cell cycle. अगर आपको बहुत सरलता से समझना है तो आप रिकॉल करके देखो, 10th तक आपने जरूर किसी न किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पढ़ा होगा। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? अपने पेरेंट्स के रिप्रोडक्शन के बाद, अब जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो उस प्रोसेस में मेल और फीमेल ऐसे दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये पेरेंट्स अपना कंट्रीब्यूशन गैमेट के रूप में देते हुए जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो अगली जनरेशन का सबसे पहला सेल डेवलप होता है, वो होता है जाइगोट। फिर इस जाइगोट में सीक्वेंशियल और ऑर्डरली डेवलपमेंट के चेंजेस होते हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इस ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेस के बाद रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज डेवलप होती है, और जब वो रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज डेवलप होती है तो ये नया ऑर्गेनिज्म भी अब पेरेंट के समान काम करते हुए दूसरे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का काम करता है।
इन सब इवेंट्स को मिलाकर हम ऑर्गेनिज्म में क्या नाम देते हैं? लाइफ साइकिल। बिल्कुल वैसे ही देखो इस डायग्राम की सहायता से, दिस इज अ न्यू सेल फॉर्म्ड आफ्टर द डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल। अपने फॉर्मेशन के बाद ये अपने आप में बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेस करता है, प्रिपरेटरी चेंजेस करता है, और उन चेंजेस के बाद इसमें भी रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज डेवलप हो जाती है। यानी अब ये खुद किसके समान बिहेव कर सकता है? पेरेंट सेल के समान। और पेरेंट सेल के समान बिहेव करते हुए जब ये डिवाइड होता है तब जाकर नए डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हम सेल में इन इवेंट्स को मिलाकर लगने वाले ड्यूरेशन की बात करें, if we consider the time required, the duration required to complete all these events in the life of a cell, then we can use the term generation time. क्योंकि यहां से एक नए सेल का इनिशिएशन हुआ था, और जब उसने डिवाइड होकर नए डॉटर सेल बना दिए तो अब उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, उसकी जगह नए डॉटर सेल आ गए। यानी इतने ड्यूरेशन को हम क्या नाम दे सकते हैं? जनरेशन टाइम। अब सेल साइकिल की डेफिनेशन को मैं दूसरे तरीके से भी बोलता हूं, द डिफरेंट sequential and orderly changes or events which occur in the generation time of a cell together constitute a cell cycle. ये देखो, ये पहली डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। सेल साइकिल मतलब it is the combination of events which involve the duplication of genome or genetic material. It also involves the synthesis of different cellular components so that their quantity becomes doubled in the parent cell. After these two preparatory changes, now the parent cell actually undergoes division and it results in the formation of two daughter cells. तो बुक के अनुसार ये पूरे इवेंट्स मिलकर सेल साइकिल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और उसकी डेफिनेशन जो मैं दूसरी बता रहा हूं वो डेफिनेशन क्या होगी? देखो, the regular and sequential changes or events occurring in a cell during its generation time together constitute a cell cycle. अब ये इवेंट्स कौन से होते हैं जिनको मिलाकर हम नाम दे रहे हैं सेल साइकिल? दिस इज अ न्यूली फॉर्म्ड सेल जिसको हम नाम देते हैं एक डॉटर सेल का। उसके लिए मैं न्यूली फॉर्म्ड
सेल ऐसा टर्म भी यूज कर रहा हूं। अपने फॉर्मेशन के बाद ये डॉटर सेल बहुत सारे प्रिपरेटरी चेंजेस करता है। ये प्रिपरेटरी चेंजेस अब इस डॉटर सेल में रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज डेवलप कर देते हैं। इसीलिए देखो सेल डिवीजन को दूसरा नाम सेल रिप्रोडक्शन भी दिया जाता है। सेल डिवीजन इज अदरवाइज कॉल्ड एज सेल रिप्रोडक्शन, बट दिस प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल एंड देयरफॉर it is generally referred as cell division. Preparatory changes के बाद अब ये डॉटर सेल जब रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज डेवलप कर लेता है तब वो एक पेरेंट के समान काम करने लगता है और अब इस पेरेंट में एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डिवीजन होता है। इसको देखो मैंने यहां पर नाम दिया सेल डिवीजन या सेल रिप्रोडक्शन, जिसके द्वारा वो पेरेंट सेल अब दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इन प्रिपरेटरी चेंजेस में अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं। कुछ में एक इंपॉर्टेंट इवेंट जिसको बोलते हैं डीएनए डुप्लीकेशन, उसके द्वारा सेल के जीनोम का डुप्लीकेशन किया जाता है। उसी के साथ साथ प्रोटीन का सिंथेसिस, नए नए सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन, डिफरेंट एंजाइम्स का फॉर्मेशन, ये सभी चेंजेस होते रहते हैं। तो considering these significant changes which are taking place in the preparatory phase, this preparatory phase can be further divided into 3 sub-phases, and these sub-phases are given the name as G1 phase, S phase and G2 phase. Now, before going to the further details of cell cycle, we shall also see the continuous occurrence of this cell cycle. Continuous occurrence अगर हम कंसीडर करेंगे तो देखो ये पेरेंट सेल डिवाइड होकर के डॉटर सेल्स बना रहा है। डॉटर सेल्स बनने के बाद अपने आप में प्रिपरेशन करके फिर से पेरेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर पेरेंट सेल डिवाइड होकर नए डॉटर सेल्स बना रहा है। यानी ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है। हम इस प्रिपरेटरी फेज के लिए एक दूसरा टर्म भी यूज कर सकते हैं। वो कौन सा? देखो, दिस इज वन सेल डिवीजन and this is the next cell division. दो successive cell division के बीच में there is presence of a significant part or phase in which the cell externally seems to be inactive. Listen carefully. Externally seems to be inactive, but internally it is metabolically very active, because during this phase only all the preparations are to be made by which the daughter cell gets converted into a parent cell, acquires the reproductive ability and then can undergo the next cell division. तो इसीलिए दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच में एग्जिस्ट करने वाली इस फेज को दूसरा नाम ये भी दिया जाता है। दिस प्रिपरेटरी फेज इज अदरवाइज डिस्क्राइब्ड एज इंटरफेज। यानी अब हम सेल साइकिल को
दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसका एक पार्ट हो गया इंटरफेस और दूसरा पार्ट हो गया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक्चुअली में बहुत ही कम समय लेने वाला पार्ट है। इट एक्चुअली रिक्वायर्स nearly 5% duration of the actual generation time, while the remaining 95% time of the cell cycle or generation time is actually taken by the interface। तो इंटरफेस सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप होती है किसी भी सेल साइकिल में, जिसमें पेरेंट सेल या जिसमें एक सेल अपने आप में प्रिपरेटरी चेंजेस करते हुए पेरेंट सेल की एबिलिटी यानी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी गेन करता है और उसके बाद उसका डिवीजन होकर डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। अब इस इंटरफेज में या प्रिपरेटरी फेज में जो चेंजेस होते हैं वो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स का सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। से फॉर एग्जांपल एस फेज इज नोन टू कॉज द डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। G1 phase is responsible for synthesizing the different proteins. S phase is also responsible for synthesizing the different proteins. We will see the complete details of the changes taking place in G1, S and G2 in the next class. Today we have to discuss the different sub-stages of the cell cycle and the major types of the cell division. This is a kind of introductory part of the cell cycle and cell division. आपने पहले भी पढ़ा होगा माइटोसिस, मियोसिस, सेल साइकिल, उसी को जस्ट रिकॉल करने के लिए और आपके 11th में एक्चुअल इंटरफेस में क्या चेंजेस है, सेल डिवीजन में क्या चेंजेस है, उसके साथ जोड़ने के लिए, ब्रिज करने के लिए आज का सेशन हम यहां पर देख रहे हैं। तो इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस एंड दीज 3 सब फेजेस आर G1 phase, the S phase and the G2 phase. Here the term G means growth. Formerly it was assumed that the interphase is a kind of resting phase between two successive cell division. जब पूरी स्टडीज नहीं हुई थी तो पहले ये माना जाता था कि इंटरफेज एक प्रकार की रेस्टिंग फेज है जो दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच में प्रेजेंट रहती है, दिखाई देती है। परंतु जब माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज की गई, बायोकेमिकल स्टडीज भी की गई, तो पता चला कि ये रेस्टिंग फेज नहीं है बल्कि सेल साइकिल की सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है। उसी स्टेज के द्वारा एक सेल अपने आप को अगले डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। तो अब उसके इस सिग्निफिकेंस के बेसिस पर उसको नाम दिया जाने लगा ग्रोथ फेज। पहले ये जी लेटर को कंसीडर किया जाता था गैप फेज। अभी भी आप कई बुक्स में देखोगे दिस इज कॉल्ड द गैप 1 फेज, दिस इज कॉल्ड द गैप 2 फेज, but correctly now it is described as first growth phase, this is called the second growth phase, and between the two there is S phase। S का मतलब synthesis,
और सिंथेसिस का मतलब सिंथेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ क्रोमोसोम या सिंपली डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। उसके बाद ये पेरेंट सेल जब रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज डेवलप कर लेता है तो उसमें अब अगला सेल डिवीजन होता है, और ये सेल डिवीजन भी 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। उसके पहले पार्ट में उसके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, दैट इज गिवन द नेम एज कैरियोकाइनेसिस। द टर्म कैरियन मींस न्यूक्लियस। और उसके दूसरे पार्ट में उसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। Among these two, the most complicated and most significant part is the division of nucleus, and therefore just to understand the mechanism of nuclear division, karyokinesis is further divided into 4 substages. These 4 substages are prophase, metaphase, anaphase and the telophase. एक चीज आप बिल्कुल ख्याल में रखेंगे कि न्यूक्लियर डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस where actual demarcation between different phases cannot be done, but for the sake of understanding and describing the process, it has been divided into 4 substages. In true speaking, it's a progressive process. उसमें कोई ऐसा डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता, पर समझने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए उसको 4 अलग अलग स्टेजेस या फेजेस में डिवाइड किया है। तो अब कुल मिलाकर अगर हम सेल साइकिल को एज ए होल कंसीडर करें तो सेल साइकिल को अब हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग स्टेजेस में। देखो, पहली स्टेज हो जाएगी G1 फेज, S फेज, G2 फेज। फिर उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन की स्टेजेस आएंगी, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। यानी टोटल कितनी स्टेजेस हो गई सेल साइकिल में? सब स्टेजेस 7। Among the 7 sub stages, the first 3 belong to interphase, and the last 4 constitute another important part of the cell cycle, which is known as karyokinesis. ठीक है? Now this actual process of division of nucleus is also described, इधर देखिए, सेल डिवीजन के लिए अब एक सिंगल टर्म M फेज ऐसा भी यूज किया जाता है, where this M actually means the mitotic phase. Mitotic phase का मतलब actual phase of division, actual phase of division। ठीक है? अब एक्चुअल फेज ऑफ डिवीजन भी अलग अलग प्रकार से होता है। देयर आर सर्टन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरी सिंपल टाइप which show this division by a process called as a mitosis, while the other evolved organisms are showing the 2 regular methods of cell division, which are mitosis and meiosis. So we will have the detailed discussion on the types of cell division
in the next class. अभी मैंने आपको नाम बताया माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ये 3 प्रकार से सेल का एक्चुअल डिवीजन होता है। तो वी विल सी द डिटेल्स ऑफ ऑल कि इंटरफेस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का डिटेल तो हम इंडिविजुअल सेल डिवीजन प्रोसेस में पढ़ेंगे, because karyokinesis in mitosis and meiosis is bit different। तो वो डिटेल हम माइटोसिस में कैसा होता है पढ़ेंगे, मियोसिस में कैसा होता है पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं दोनों में वो भी पढ़ेंगे। टुडे वी हैव हैड ए ब्रीफ डिस्कशन ऑन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। In next class, we shall see details of both cell cycle and cell division. Remember, cell division is also called cell reproduction. So, for today it is enough. I conclude with this. Have a very good day. Thank you.